Ravi, I think we can start, and in the meantime, people will keep on joining, and they can join us later as well. Sure, So, sure. हाँ, तो क्या लग रहा है करंट मार्केट का क्या सिनारियो, क्या ट्रेंड बन रहा है और कौन से सेक्टर्स को मतलब आप ट्रैक कर रहे हैं, तो ओवरव्यू बताइए फिर देखते हैं। Look, one thing is which is I am been talking in other spaces which we conducted earlier. Market na narrow hote jayega. If you remember, we were having a very narrow market in 2018-19, where you saw that 10 stocks from indices used to make money while other बाकी portfolio में पैसा नहीं बनता था. If you have a broad kind of portfolio जहाँ पे आप valuation देख के invest करते थे. What has happened in recent past is there has been a lot of selling from FIIs from the leading counter, and that's why they were not performing. I'm talking the leading counters, say HDFC हुआ, Kotak हुआ, even Bajaj वाले हुए. So once this FII's flows come back now, they will again come back. वो लोग आते ही सीधा mid cap focus नहीं लगाते यार. They will come back mostly in these counters which are extremely cheap from the historical level. I'm again talking about this private banks जो FMCG थे. FMCG में थोड़ा हो सकता है कम आए, but banks के growth तो I'm very bullish on यार. You think about this. There was one risk for last 1 year we were thinking about fintech, all the people, fintech, startup who are burning money and distributing money. Okay. And now if the funding for these startups slows down, this might happen that कि जो cash burn वो लोग करते थे वो slow हो जाएगा. And if that slows down, the consumer will again come back to traditional form of lending. Bajaj के पास ही वापस जाएंगे. And even banks are getting very aggressive on consumer lending. Even gold loan side में banks are getting very aggressive. So I do see good opportunities on the leading banks. FMCG would be selective. Discretionary spending, I'm very bullish on. Once ये raw material inflation goes out ना, something like auto, आप सोचो यार, say a guy who used to earn 20 lakhs last year IT में, he is getting 30, 35 lakhs, 40 lakhs kind of salary this year. Lumpy अगर आपके पास पैसा आता है, आप कहाँ लगाओगे? You can buy a home, you can increase your discretionary spending. There lies your cars and those kind of consumption. आपका white goods consumption ऊपर जाता है. रेस्टोरेंट और का जाता है, बट वहाँ पे कोई प्ले इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है जिसमें यू कैन इन्वेस्ट हेविली. मे बी समथिंग लाइक जुबिलेंट एंड ऑल. But there are plays on discretionary consumption on the white goods side. Once raw material inflation is contained, na, they have a very long runway for growth. Say white goods में the cycle is, say even right now अपना AC फ्रिज और का penetration इंडिया में बहुत कम है. Fan is about 60-80% penetration. AC would be around less than 10%. So there is still a long runway for a temperate climate like India. And since your capacity to spend is very high, right now the only problem with these companies are because of inflation, their EBITDA margin has been very low. But once that is curtailed, they will come back. So these are the few sectors which I'm extremely bullish on. Pharma might be again, pharma थोड़ा confusing होता है यार, because there is lots of noise because of FDA. But otherwise, if you pick some leading MNC name, you will make through the cycle money you will make there. Chemicals, I don't know much here. It's very difficult to track on because you need to understand the demand, global demand on a molecule level, whatever that particular chemicals demand is, and it's very difficult to gauge. But and they are very expensive here. In the last cycle, everything were about 20 ka multiple. Now even after steep correction, they are around 50 ka multiple. So you can't take a call whether a China plus one strategy is already priced in the 50 ka multiple or not. So I don't have a very clear view there. But otherwise, these sectors which we discuss, I am very bullish on. तो व्हाट्स योर व्यू, जो सप्लाई साइड इश्यूज हो रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसिंग का और जो ये है, तो ये कब तक मतलब सेटल डाउन होने की उम्मीद है? Look, the most important for India perspective, one most important commodity is oil. That is rather than supply demand, it's more of this war and how the positioning of OPEC is, which no one can decide here. If Russia say 1 month down the line, they says that we have achieved what we wanted to,
and oil come back to 80, 90, this would be the best situation for India. Otherwise, basket of commodity now. I think towards the end of this year, we will say that the commodity-led inflation, apart from oil, will be behind. Like the reason is this. Think about this. First, we will have the base effect. Say towards the end of 2021, every commodity, be it steel was HRC was 700, 800, or even 1000 it touch. I don't remember now. Aluminium was somewhere around 38, $4,000. So every commodity-led inflation which was spiking, we saw that inflation peaking towards the end of 2021. Now, what has happened in last few months? Say, Federal Reserve has increased rate by 50 basis point, and they took off something 10 to 15% of the price from the these commodity, except oil. Now, if this similar trend happen, that we increase, say, Federal Reserve rate by 100 basis point in next 3 4 months, and again you see the drawdown of 10 15% on commodity, then one thing is your base effect has already been coming, and now incrementally commodity price are not going up. So commodity led inflation, we might see the peak here. Oil, it's difficult to gauge here, and I guess we are getting conflicting data as well, that 20 30% of our demand for oil is now coming from Russia, which we are getting at very very cheap price. So I don't know what the reality is, but oil predicting there is very difficult. It's a binary event. Russia's call out the war is over, oil falls dramatically, and something else happens. Some other countries also join NATO and all, then oil might see 130, 140. So it's a very binary kind of situation. You can't really hedge against that situation. You have to bear the risk. You can't even move out of the market because of that risk. But other commodities, I see that like lots of things we say now, okay, it's a supply side event for commodity. But think about this, आपकी जो भी commodity consumption है ना, अगर खाली वही trade होती, so there was 100 unit of steel has been traded. But because of all traders and investor against that 100, we used to trade something around 500 units. So lots of players are there for predicting the commodity prices as investor or trader. And when Federal Reserve increased rate, they pushed down the prices as well when they were earlier increasing because of cheap money. So that effect will come into play, and it's already been happening. Next तीन चार month, 5 6 month में we will see that the commodity, ये बाकी non-oil commodity inflation we must have peaked. Yeah. So, like, what would be your view कि भाई जो Q1 और Q2 जैसा कि बोला कि 2 क्वार्टर्स में थोड़ा रह सकता है, तो कैसे कंपनीज के रिजल्ट आने की उम्मीद है, मतलब क्या एक आउटलुक सा लग रहा है? यार ये है, देखो सेल्स नंबर में तो कोई डाउट नहीं है. You can gauge from GST collection that sales number would be pretty good. The problem is with inflation, which is EBITDA margin, which might continue to be bad, because what has happened, apne whatever commodity price increase we have seen from last year April June till the end of December, commodity companies were slow in terms of passing on the prices. तो वो जैसे ब्रिटानिया बोलता था मैं Q4 तक सब कुछ ले लूंगा, इन्फ्लेशन अकोमोडेट कर लूंगा, सो वाज अदर people also. Hero Motor and auto companies increased their prices by 3 4%, I guess in the first week of April. So commodity price की वजह से जो है ना आपका मार्जिन में impact, it might continue, it will continue for Q1, might be there for some companies for Q2, but वहां तक I think you will see whatever the price which has peaked in November, December, it's get reflected in the company performance in Q1, and then it's a normal thing. Yeah. Right, Ravi. So, Ravi, we already have two speakers with one Rajiv Malik, you are already aware of, and one DCM. Yeah. So, any questions from Rajiv ji and DCM, they are more than welcome. And again, I request the audiences, अगर उनके कोई questions है तो आप request send कर सकते हैं और we can discuss whatever you feel like. And not only question, Rajiv ji and anyone who wish to add something to the discussion, please feel free to add anything. Rajiv sir, over to you. Uh, uh, Thank you very much for including me in this space.
Prince and Ravindra Bhandari ji. It's really nice to have a learned person like you speaking on and educating all of us on this current market scenario, which is very uh, full of uncertainties and challenges, which are difficult to comprehend by a normal layman, who is interested in investing. And I really like the your pinned tweet that mistakes are made in bull market, which get revealed in the bear market, and opportunities missed in bear market are regretted in bull market. So only a sane eye can see the right balance between the risk and the return. So this, in fact, Ravinder ji conveys your entire philosophy on investing. And so first we have to understand from you whether it is a bull market or bear market, and then we develop a sane eye to see the right balance, and for which I'm sure you are here educating us all. Sir, Ravinder ji, we will like to know from you. Uh, what are the broad themes or trends of future, some crystal ball gazing that you can do for us, which can help our audience in having a long term vision and also a short term vision as we progress in this discussion. Thank you very much. Thanks, Rajiv ji. Yeah, that tweet I was just thinking few years back. That tweet I made few years back. I was just thinking about investment on a Sunday or Saturday afternoon. I tweeted that. But yeah, coming back to sectors and which might perform well, I to continue to believe that if India needs to grow, private banks has to participate. You can't grow your GDP with 6% plus inflation of say 4%, say 10% nominal growth without bank contributing in terms of credit growth. So banks has to participate. Earlier, what used to happen is there was lots of competition from NBFCs, which has scaled down materially, and some of the NBFC has even become very large players. So they, when we talk about credit growth, we have to include them also in terms of supporting the credit growth within the country. So banks, and especially this is my thinking, what has happened in say last not even 5-10 years, this has been history of say 30-40 years, because of technology and because of outreach of companies. एक वो फिलॉसफी बनती है ना, विनर टेक्स इट ऑल, दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, कि आप सबको ये नहीं बोल सकते कि भाई कि इसको भी 20 का पी मल्टीपल मिलेगा और मिड कैप वाले को भी 20 का मल्टीपल मिलेगा. हो क्या रहा है कि एवरीवन इज रीडिंग द सेम हैरी पॉटर, everyone is watching the same Christopher Nolan, everyone, in terms of investing also, everyone will move towards one unidirection, which is the clear winner in the sector, और मे बी 4-5 कंपनीज. और अगर आपको एक अलग बेट लेना है ना, तो आप ऐसे लो कि अगर लेट मी टेक फ्यू नेम्स, जैसे मैं अगर बैंकिंग साइड में जाऊं तो HDFC एंड कोटक आर द बैंक विच यू कैन से दैट दे विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 20 years. यू कैन हैव अ व्यू दैट लॉन्ग फॉर देम. अगर आपको किसी छोटे बैंक पे व्यू लेना है, से आई वन बैंक आई लाइक विच इज अपकमिंग इज IDFC बैंक. ओके, सो यू कैन हैव अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 15% प्योर बैंकिंग वाले को रखते हैं और आपका समझ लीजिए 14-15% ये लीडिंग बैंक्स पे है, तो आप 1-2% आप IDFC में रख के यू कैन ट्रैक हाउ दे आर परफॉर्मिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट? कि अगर अब यू कैन गो वन विच इज मिड कैप और एक्सट्रीमली स्मॉल कैप एज अ लार्जर एलोकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो. अगर आपको वो इफ यू आर टारगेटिंग दैट 13-15% काइंड ऑफ return from your portfolio. So these are the banks. So definitely I'm very bullish on. Other thing is auto, I am bullish. Discretionary consumption, white goods में Voltas, Blue Star, Whirlpool,
Hitachi. There are lots of companies you can study. Most of them are clean, do good business in India. They will survive whatever competition comes. They have a very strong brand appeal and customer hold. So they are really good. Then there are few companies among the FMCG यार. FMCG में क्या है सर कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते in terms of growth because say HUL, if I say I like HUL, HUL का penetration इंडिया में इतना deep है because of smaller sachet and वो छोटा छोटा जो पैकेट्स में प्रोडक्ट बेचते हैं कि दे हैव पेनिट्रेटेड टू द रूरल पॉकेट्स ऑफ इंडिया. तो एक्सट्रीमली लार्ज ग्रोथ आपके लिए लाना मुश्किल है. Compared to that, you can think about a Nestle, which is still a urban market product, which is still mostly consumed by premium household of India. So they might have a longer runway of growth. So if they, but difference is one is available at 50-55 ka multiple, other is available at 70-75 ka multiple. So that takes away the sheen of the difference of the growth longevity. But if you have that like dono ke parentage is equally strong, you can buy any of them. But there you will have that 8-10% kind of return expectation. You can't have 15% or even beyond that because they will not generate very high kind of growth. तो जितना आपका EPS growth आएगा उतना ही return growth बनता है. Apart from new sector, there might be some winner in this new tech companies, but right now I think it's time to still gauge them and rather not throw your hat in the ring. Let's gauge them how they are doing for next 2-3 years, next 1 year or two. We will get plethora of opportunity there as well. So right now they are among the wait and watch mode. Other thing I like the pickup we have in the real estate segment, but rather than taking some real estate directly, I would recommend you can take building materials, इस type की companiयां, you can see them coming back in the fray because everyone has been burning, not burning, but margin has been lower because of raw material price inflation. Say building material, they use huge amount of gas and gas price is going through the roof. So their margin again will normalize 2-3 quarters down the line. So they are good proxy for real estate pickup. So these are the sectors I'm actually very bullish on. Yeah, Ravi, brilliantly explained. And even as far as private banking sector is concerned, I am also keeping a very bullish view because, as you rightly said, if the economy has to grow and the credit lending has to take place, because the market does need money to grow their business activities. So DCM sir, you can unmute yourself and your question. And in the meantime, Ankit from Smart Sync Services has also joined. And tomorrow, if I'm not mistaken, I have tagged the thread as well. So Sunday morning, 10 to 12, he is hosting a free seminar for the Twitter fraternity. So audiences, those who are keen and can spare time, can definitely avail the opportunity and use it to their benefit. Over to DCM sir. हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड इवनिंग. मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, चलेगा ना? हाँ भागेगा सर, चलेगा नहीं दौड़ेगा. हाँ, तो मेरा जो सवाल है, जो ये क्रूड बढ़ रहा है, तो इथेनॉल में आपका क्या व्यू है? और दूसरा फुटवेयर सेक्टर, मुझे 2 सेक्टर जानना है. ये दूसरा सेक्टर सुनाई नहीं दिया, क्या था? फुटवेयर. ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. आप देखिए क्रूड का तो price it's difficult to predict, but ethanol I can give you few data points. Ethanol blending, what earlier used to happen, sorry मैं हिंदी में बात करता हूँ, सॉरी पेट्रोल का जो ब्लेंडिंग था ना अपने देश में, पहले क्या था कि खाली बी मोलेसेस और सी मोलेसेस, जो पहले जूस निकालने के बाद जो मोलेसेस बनते हैं उससे बनाने का रूल था. फिर गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले कुछ चेंज किया कि आप प्योर सिरप से भी बना सकते हो. इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्टेटस आज के दिन इंडिया का ये है कि पेट्रोल में हम लोग 9.5% तक ब्लेंडिंग करते हैं और डीजल में तो अभी 1-1.5% ही हुआ है. और इट विल कंटिन्यू कि टू गो अप. आप मान के चलो गवर्नमेंट बोल रही है 20% तक ब्लेंडिंग करना है, 20 नहीं तो 15% तक नेक्स्ट 3-4 साल में हो जाएगा.
अब ये जब ब्लेंडिंग हो रही है तो आप ये सोचिए कि अभी आज के दिन में हम लोग 335 करोड़ लीटर आई गेस इथेनॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर 20% जाता है तब तो हम लोग शायद 1000 करोड़ लीटर मतलब 3x की ग्रोथ की भी बात आ सकती है। बट आप वो छोड़ दीजिए, 50-60% ग्रोथ की विजिबिलिटी क्लियर है कि 12-15% आपका ब्लेंडिंग आराम से हो सकता है, थोड़ा बहुत डीजल में भी हो सकता है। प्लस आपका जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती है कंट्री में, तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट को ऐड करता है। तो जो 350 करोड़ लीटर है उससे 500-600 करोड़ लीटर की विजिबिलिटी है, और उसके अनुसार कंपनियों ने केपेक्स भी लगाए हैं। अब दूसरी बात यह है कि सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है कंपनियां में। आई लाइक बलरामपुर। बलरामपुर इज द क्लीनेस्ट ऑफ द क्लीन इन द इथेनॉल सेक्टर। ये ऐसा होगा कि अगर सेक्टर चला तो बाकी जो नीचे डाउन द रिंग कंपनी है ना, वो 3-4 गुना बढ़ती है। बलरामपुर आपका 50-60%, 100% ही बढ़ेगा। बट सिमिलरली जब बियर मार्केट आता है ना, तो यही लीडिंग कंपनीज करेक्ट भी 20-30% होती है, और जो डाउन द रिंग कंपनीज होगी वो 50-70% भी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल का सपोर्ट नहीं होता। बलरामपुर का अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 साल में, मेरे हिसाब से हर साल वो 4 या 5% ऑफ इक्विटी बाईबैक भी करता था। अभी लास्ट थोड़ा छोटा किया है, बट अदरवाइज उनकी इक्विटी बेस 25-26 करोड़ की थी, उन्होंने शायद 20-21 करोड़ तक ले आए। तो सोचिए 5 साल में उन्होंने 20% ऑफ इक्विटी तो बाईबैक में एग्जॉस्ट की है अपनी। इतना कैश फ्लो जनरेट करती है वो कंपनी अपनी कैपेसिटी को, मेरे को कैपेसिटी याद नहीं है बट मेरे हिसाब से डबल कर रही है। 500 समथिंग KLPD था अपना, वहां पे वो 1000 के आसपास कर रही है। तो इस कंपनी को आप ट्रैक करिए, दिस आई लाइक अ लॉट। और दूसरा आपका क्वेश्चन था फुटवेयर का। फुटवेयर का सर बात ये है कि डिमांड वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड वाइज सिंपल है। अपना फुटवेयर जो यूसेज है ना इंडिया का पर पर्सन, वो बाकी सब कंट्री से 60-70% नीचे है। इवन अपने एशियन पियर्स जो हैं, जो जिनका इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल अपने जैसा ही है कुछ कुछ, और उनसे भी अपना 30-40% नीचे है। तो ग्रोथ तो है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्रोथ के लिए ना वैल्यूएशन ज्यादातर कंपनियों के बहुत हाई है। बिकॉज अर्लियर ये था कि कंपनियां इस सेगमेंट में दो ही थी मेन, अपनी बाटा और रिलैक्सो। आज के दिन में 4-5 कंपनियां हो गई है। आप मेट्रो भी देख सकते हैं। मेट्रो थोड़ा सस्ता वैल्यूएशन है, बट रुकिए इसमें थोड़ा करेक्शन आता है तो आप धीरे धीरे ऐड कीजिए। मे बी रिलैक्सो इज द बेस्ट इन द पैक। बट सेगमेंट में क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है, तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, तो इमीडिएटली पूरा मत ले लीजिएगा। ग्रोथ है, ग्रोथ में डाउट नहीं है, ग्रोथ है, बट वैल्यूएशन भी स्ट्रेच है। तो वैल्यूएशन करेक्ट होता है तो फिर वो एक बार में पूरा लेके फायदा नहीं है। तो ये व्यू है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम यार। थैंक यू DCM जी, धन्यवाद आपका। सो गाइस, जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और अपना या फिर जैसा कि कहा कि कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो भी वेलकम है। बट सबसे अनुरोध है कि काइंडली कीप इट शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लें। तो जो भी ऑडियंसेस में हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। जी कोमल जी कहिए। हेलो। एक चीज और है इथेनॉल में, आई गेस शशांक का ही एक वीडियो था, शशांक का या किसी का साधन का वीडियो था। आई लाइक दैट वीडियो वेरी वेरी मच यार। कुछ आधे घंटे का उन्होंने एनालिसिस किया था। सो जो भी आपको इनिशियल ब्रीफिंग चाहिए इथेनॉल में, पूरा पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आप सर्च कीजिए ऑन इथेनॉल, इट्स अ हाफ आवर वीडियो, आपको आधे घंटे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और गाइस, ये हालांकि एंडोर्समेंट नहीं है, बट जैसे शशांक का हैंडल है तो वो अगले कुछ टाइम मतलब 2-3 वीक में शायद एक प्राज इंडस्ट्रीज और पूरा इथेनॉल पे वेबिनार करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब करना क्या चाह रहे हैं। और खैर वो तो पेड है, तो जो कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। अदरवाइज जो इथेनॉल के ऊपर रवि ने बताया वो काफी अच्छा वीडियो है, और सबके लिए फ्री पे उनके वैल्यू एडुकेटर चैनल पे अवेलेबल है।
इसके अलावा एक छोटी सी करेक्शन है, जैसे स्मार्ट सिंक सर्विसेज अंकित कानोडिया जी चलाते हैं, जो ये सेमिनार वेबिनार है, जो फ्री वेबिनार है, वो कल ना होके नेक्स्ट संडे को है, आई थिंक 12th को है, तो वो एक करेक्शन थी। सो कोमल जी, ओवर टू यू। या गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन एज वेल। सर मैं एक चीज़ इसमें आपके, मैंने अभी ज्वाइन करा तो मुझे पता नहीं है लोगों ने किस किस बारे में बात की है, तो मैं अभी बताना चाहता हूँ। मैं फोकस पे रखना चाहता हूँ सर आईटी स्टॉक्स, राइट। आईटी स्टॉक्स के लिए मैं हार्डली 5 मिनट लूँगा मैक्सिमम, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वाई आई एम बुलिश ऑन दिस। सर अगर आप आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो अगर कैन समवन टेल मी दैट समवन इज फ्रॉम आईटी सेक्टर? कोमल नहीं, जी आप बताइए, बोलिए, आप जानकारी रखते बोलिए, हैं थोड़ा बेसिक, आप शॉर्ट में बताइए। बताइएगा, आप बताइए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ सर, अभी जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे कि कुछ स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड हैं, जैसे कि मैं मतलब ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं केवल ये व्यू अपना दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके मैं रीज़न भी बताता हूँ कि जैसे कि टॉप मोस्ट पे है आईपीएस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सेकंड वन इज केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, थर्ड वन इज एलएलटीटीएस, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बॉटम से उठाता हूँ एलटीटीएस, अगर आप इनका क्लाइंट बेस उठा के देखेंगे तो इनके फॉर्च्यून 500 के इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप इनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखेंगे तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है। आईटी में क्या होता है, जितने भी जो भी हमारी जो कंपनीज हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, एनफोसिस, टीसीएस, इनका जो भी इनके जो एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, ठीक है, तो इनके जो एम्प्लॉयज जो भी होते हैं तो ये सब अपने एम्प्लॉयज को बिलेबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्पल के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो ये एप्पल के लिए जितने भी 100 रिसोर्स देंगे, 200 रिसोर्स देंगे, 300 रिसोर्स देंगे, तो ये अपने एम्प्लॉय जितने भी लगाएंगे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ज करते हैं। यानी कि आईटी सेक्टर में जितने भी अभी आप अगर आप देखेंगे बहुत मैसिव मतलब हायरिंग चल रही है, तो हायर नंबर ऑफ उनके पाइपलाइन में जो है प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, और पर इंजीनियर उनकी बिलिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से अभी जो आईटी में करेक्शन आया था जस्ट बिकॉज ऑफ नास्डैक, क्योंकि नास्डैक करेक्ट हुआ था यूएस मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में भी प्रेशर था, लेकिन अब इंडियन मार्केट में सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं आईटी स्टॉक्स में। तो आईटी स्टॉक्स को कीप इन रडार। और मैं क्यों फेवरेबल बोलता हूँ हमेशा आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करता रहता है, राइट। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जरूरी नहीं है कि वो एज पर द डिमांड अपने आप को अपडेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसडर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है ना। तो आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नीड अपडेट करते रहते हैं। तो मेरा यही प्रेफरेंस है, जो भी बिगनर हैं तो पहला अगर ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस रखें सेक्टर वाइज में, उसमें आईटी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप को अपडेट रखती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डिमांड एज पर। बस यही बोलना था सर। Thanks, Komal, for your views. Uh, I agree. They keep on updating with their demand, क्योंकि otherwise तो customer दूसरे के पास चला जाएगा. So it's a requirement of the business यार. अगर आप IT वाली कंपनी चलाओगे और आप अपडेटेड नहीं रहोगे, तो कस्टमर टूट के आगे चला जाता है. तो वो तो है, गिवन है. माई ओनली कंसर्न इज वैल्यूएशन. आप जो दो सेगमेंट है आईटी कंपनीज में, एक तो आईटीईएस जो नॉर्मल अपने अर्सवाइल पुरानी आईटीईएस कंपनी है, सर्विस वाली कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस एंड एचसीएल टेक टाइप ऑफ कंपनीज. उसमें क्या है कि यू सी व्हाट द हिस्टोरिकल वैल्यूएशन दे यूज टू ट्रेड. हर साल वो हमेशा 10 से 15% एम्प्लॉय बेस बढ़ाते थे, आज का नहीं है. 2000 से ही मेरे हिसाब से उनका एम्प्लॉय बेस हर साल 15-20, उस समय 15-20% ग्रोथ होता होगा. नियर टर्म में आजकल 10-15%, 10% के आसपास एम्प्लॉय बेस ग्रोथ होता है. व्हाट दे यूज टू ट्रेड वॉज समथिंग अराउंड से, अगर मैं एग्जांपल लूँ इन्फोसिस का आप स्क्रीनर में चार्ट देखिएगा, 10 साल का पीई रेशियो यूज टू बी अराउंड 20, आज के दिन में वो 26-27 का है. सो दिस इज, आई वुड से, द रीजन फॉर मी टू सेइंग के हो सकता है थोड़ा करेक्शन बाकी हो. और जो नैस्डैक वाली बात है ना, तो वो ये भी है कि हमेशा से इन्फोसिस और टीसीएस Infosys used to trade at 20 का मल्टीपल, TCS used to trade at 24-25 का मल्टीपल. They moved from 20 and 24 to 30 and 35 because Nasdaq was performing very well for last 1 year. अब Nasdaq नीचे आ रहा तो साथ साथ इंडियन आईटी कंपनीज में भी करेक्शन है. सो अगर वो हिस्टोरिकली लेवल पे आते हैं वेयर दे यूज टू ट्रेड, या तो अर्निंग कैचअप करके आए या फिर प्राइस करेक्शन से आए. ये मैं खाली आईटीईएस कंपनी की बात कर रहा हूँ.
तो फिर उनका व्यू आप ले सकते हो। अदरवाइज मेरे को अभी भी लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव आईटी कंपनीज थोड़ा रहते हैं, थोड़ा आप बोल सकते हो रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, कि इस टाइप की क्वालिटी और इस टाइप का साइज आपको मिलता नहीं है। बट दैट वाज द केस 3 साल पहले भी। तो हर चीज ना साइकिल में मूव करती है इन्वेस्टमेंट में। 2016-17 एक ऐसा टाइम था, आईटी कंपनीज में कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था। द रीजन वाज दे वर थिंकिंग कि ऑटोमेशन आएगा और सब कुछ ये सर्विसेज वाली कंपनी बिजनेस विल स्लो डाउन। आज के दिन है कि बिजनेस इतना है कि वो बोल रहे सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी कारण काफी हद तक ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो भी ऑटोमेशन अडॉप्शन होना चाहिए था, या जो भी डिजिटल अडॉप्शन होना चाहिए था, दैट गॉट प्रीपोन। नाउ वी विल सी बिकॉज ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ सैलरी हाइक हैज बीन, व्हाट इज द काइंड ऑफ मार्जिन इम्पैक्ट विल कम। हमेशा आप देखो, जनरली इनका जो मार्जिन है ना, आज के दिन वापस से वॉट एवर दे यूज टू हैव सेविंग ऑन ट्रैवल्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट सेविंग फॉर 2021-22 इज रिवर्सिंग। आज के दिन लास्ट क्वार्टर इन्फी टीसीएस का मार्जिन वही है जो कोविड से पहले हुआ करता था। तो एंड अगर 1 साल का ग्रोथ विजिबिलिटी सबको ही दे रहे हैं कि उनका ग्रोथ बहुत हाई रहेगा FY23 में, बट 24 में वापस से अगर वो नॉर्मल में आता है जो पहले होता था कि 8-9% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहती है, देन देर इज नो रीजन कि वैल्यूएशन पहले से ज्यादा रहे। वैल्यूएशन भी पहले जैसे ही रहने चाहिए अगर ग्रोथ पहले जैसी है। आईटी जो ये जो नई टाइप की कंपनीज है, केपीआईटी हुआ, एलटीटीएस हुआ, और इवन टाटा एलेक्सी हुआ, यहाँ पे यू कैन टेक अ बिट हायर मल्टीपल, बट मेरा कोई क्लियर व्यू नहीं है यहाँ पे। दे आर ऑल एक्सपेंसिव, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। So if you go into detail and understand what kind of growth they are planning to have, then you can have a very clear view. But otherwise, yeah, companies are doing very well, all three companies. इनका क्या है, बिजनेस क्या है कि आजकल गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा चीजें जो इंटरटेनमेंट वाली होती है ना, इंफोटेनमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एंड दैट कॉस्ट से 20 साल पहले यूज टू बी 2-3% ऑन अ कार, नाउ इट्स 15%। जब आपका और सेंसर लगेंगे, व्हेन यू विल हैव मोर कनेक्टेड काइंड ऑफ व्हीकल, तो वो आप 15% से हो सकता है 30-35% हो जाए। एंड देन दीज कंपनीज विल हैव अ लॉन्गर रनवे, हायर कंट्रीब्यूशन पर व्हीकल, दैट विल हेल्प देम ऑन रेवेन्यू। बट डिफिकल्ट टू से वेदर दे आर एक्सपेंस। देखो, रिटर्न शेयर होल्डर को कैसे बनेगा कि आप मान के चलो वैल्यूएशन जो है वो यहीं का यहीं रहे, और वॉट एवर ग्रोथ ईपीएस आती है वो आपका शेयर प्राइस में कन्वर्ट हो। उसका वो व्यू लेना, आई हैवंट स्टडीड इन दैट डिटेल, so I can't comment. If you have studied, then yeah, you can take that view. Ravindra ji, I need to give one little update. I am already from IT sector. Okay, so I can understand and I can deep study on both your point you raised actually. तो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ, जो मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, अभी जो आईटी में क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिमांड जो है बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी है। ड्रास्टिकली ऐसे बढ़ी है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिन कंपनियों के पास, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल। बोलिए 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 बोलिए, हाँ सुन रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि जिस कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स होते थे, ठीक है, आज की डेट में उनके पास 250-300 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन पे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर के लिए है। और ऑब्वियसली बात है, जो आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी ने इतने इंजीनियर्स हायर करे हैं, अभी नहीं, लेकिन ये स्टैगर्ड मैनर में ये ले ऑफ भी होगा, आज नहीं 2 साल बाद, 3 साल होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद ये होगा जरूर। तो वो मार्जिन मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन जो अभी इनका जो जितना भी चल रहा है, जितना भी इन्होंने प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन पे हैं, जो एमओयू साइन करे हैं इन्होंने, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं दो नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर में एग्जीक्यूशन के, ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 ईयर तक के लिए एटलीस्ट मिनिमम यहाँ से एक ब्राइट फ्यूचर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं ज़्यादा मतलब लोगों को मतलब ये नहीं करना चाहता कि लोग मतलब कल ही जाके ब्लाइंड बाई कर लें, लेकिन ये जो मैंने नाम लिए हैं ये कंपनियां, आप अगर इस पर स्टडी करेंगे तो ये नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में आपको मतलब मिनिमम 30-40% यहाँ से आप मूव दिखाएंगी या दिखा सकती हैं। For अच्छा sure. पोटेंशियल है सर। Yeah, मोहन जी, yeah. So, मोहन जी, बेसिकली जो आपने कंपनीज के नाम लिए हैं, तो खैर मेरी लिमिटेड जानकारी है, बट ये प्योर आईटी ना हो के थोड़ा प्रोडक्ट साइड पे, और जैसा कि रविंद्र ने बताया, ये बेसिकली ऑटोमेट जो गाड़ियों में जो बेसिकली जो फीचर्स, और जैसा कि बताया, तो उस एंड पे ज्यादा है। तो दूसरा एक आपने जो आईटी कंपनीज में बेंच की बात करी थी, दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज एज अ बेंच, सो एज टू लाइक आप किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं
तो यू नीड टू शो स्ट्रेंथ एंड मतलब आपके पास एक रेडी क्या बोलते हैं एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि यू कैन बिड फॉर दैट अपकमिंग प्रोजेक्ट। सो बेंच इज मैंडेटरी स्पेशली इन लार्ज कंपनीज। और आप देखेंगे आईटी कंपनीज में जो मेन आप देखेंगे कि एक बार सेटअप हो गया है तो उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट इज द आई मीन बिगेस्ट, बेसिकली जो उनके एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा जो चीज ऐड करती है वो एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। और आपने रिसेंट पिछले बेसिकली कोरोना के बाद से आपने देखा है कि एट्रिशन रेट काफी मतलब हर एक कंपनीज में इस ऑल टाइम हाई रही। हाँ थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हुआ है। जैसा आपने बात करा ले ऑफ का, ऑब्वियसली वही है, हर चीज सिक्लिकल है। अब कहीं बार एट्रिशन ज्यादा होती है तो फिर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए या प्रोजेक्ट्स आप कन्वर्ट नहीं कर पाए तो देर आर सो मेनी इश्यूज, ले ऑफ भी होता है। बट एज वेरी राइटली सेड बाय रविंद्र जी, वैल्यूएशन इज वेरी मच इनटू पिक्चर और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जो गाइडलाइन है कमिंग ईयर्स में वो अपनी जगह है, लेकिन क्या मार्केट ने वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है नहीं करा है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं विच वी नीड टू सी। ऑब्वियसली आईटी इज द फ्यूचर, डिजिटल इज द फ्यूचर, बट valuation has to be respected at all points on time. So with this we move on to next speaker. Shubh can unmute himself and ask his question. Hello. Yeah, Shubh. Yes, sir. I just wanted to ask, what's your view on the future of artificial intelligence? Means the companies like Happiest Minds and more major. Yeah, Ravi, any view you carry on companies working on Yeah, artificial? I would say it's very difficult to have a view on something which is disrupting so fast. Few of things will become very big. I was recently reading about Root Mobile. That also, I think, felt that these things can become really, really very big. Growth are fantastic. But on the other side, on the risk side, you will not know if some large company comes and disrupt this market. So I would advise, if you want to play these kind of sector, artificial intelligence and something software as a service, CPaaS, then your allocation has to be broad base. आप एक ही कंपनी में 8-10% लगा के मत बैठ जाइए. You have a broad base allocation and a smaller allocation, because that's how the risk profile of these companies, as I see from my limited understanding, okay, they can become really very big, but there are risks that sometimes someone other can enter and disrupt the sector, because this itself is changing so fast. So your allocation need to be small. My limited point on these new kind of companies, and all these companies here, I keep on saying to anyone whom I interact, you need to, companies are like animal. You need to identify how that animal is performing in a bear market. वो इन्होंने एक बार भी देखा नहीं है, तो वो भी टेस्ट करने के लिए यू नीड टू सी के हाउ दे परफॉर्म इन बैड साइकिल. अभी तक बैड साइकिल जैसा कुछ आया नहीं है. 30-40% ग्रोथ सबका आ रहा है. So it's very difficult to gauge how this company can recover when there is dullness in the market, in the industry. I'm not saying from stock price perspective, but I'm saying if from economy and business perspective for the artificial intelligence sector, which we don't see right now that there can be any slowdown. But if there is slowdown or some other larger players come, how these companies can evolve themselves. So that also we need to see. And for allocation, you can have them in your portfolio, but the allocation has to be respected at a level where the risk aside, there can be a very large fat tail end risk where this thing, where these companies can be disrupted. So your allocation has to be that 2-3%, so that it doesn't impact too significantly on your portfolio. Yes, sir. But The same problem you were discussing, that the valuations, the Happiest Minds and all the Root Mobiles and the companies were trading at almost a P of 100x. Now they are corrected to 70 or 65. Then also it should be corrected more, or the earnings should go higher. So should we have to invest in more proportion, or we should wait? Means yeah, I am already. if you don't understand the sector now, you have only look. My understanding is very limited. My understanding is that they are growing very fast. They were very expensive. Now they are little expensive. So it's very difficult to have a large allocation. आपका conviction कैसे बनेगा इतनी ऐसी understanding में?
कन्विक्शन नहीं बनता ना, तो जिसने भी 100 का पीई में लिया होगा उसका 70 के पीई में बिक जाएगा. Until unless you have conviction ke why this is correcting and there is scope for recovery, you will not able to hold any stock in the market. Forget about this AI and new age thing. अगर आपका conviction नहीं है तो आप HDFC भी नहीं hold कर पाओगे. So राइट having राइट. a deeper understanding is more important. और if you are just coming in for return, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार बियर मार्केट में. तब तो my advice would be you follow index investing. कि अगर आप खाली पी मल्टीपल और वो देख के इन्वेस्ट करो तो वो स्टॉक छूट जाता है, बिकॉज दिस फियर ग्रिप्स यू यार. दैट्स माय No, sir. एक्सपीरियंस दैट. आई एम ऑलरेडी मीन्स मैं ऑलरेडी एक सिप प्लेयर हूँ. मैंने हाँ. मतलब ऑलमोस्ट 110 की पीई पे लिया है और मेरा कन्विक्शन हाई है उसके ऊपर. मैं मतलब कॉन कॉल्स भी अटेंड करता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स वगैरह, और जो मेरे पर्सनल 7 to 8 होल्डिंग्स है, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 और 3 इयर्स हुए हैं. मतलब ओके. एक्टिव इन्वेस्टिंग करता हूँ और रेगुलरली वॉच भी करता हूँ कंपनी चार्ट्स वगैरह, टेक्निकल्स भी थोड़े थोड़े, जितना आता है उतना हो सकता है उतना. अच्छी बात है शुभ. बेसिकली ग्रेट हम ग्रेट. एक चीज कहना चाहेंगे कि अ गुड बिजनेस इज नॉट नेसेसरली अ गुड इन्वेस्टमेंट. वी हैव टू फाइंड द सटल डिफरेंस बिटवीन गुड बिजनेस और गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. देखो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो प्रीमियम पे हैं, बट वो गुड इन्वेस्टमेंट है या नहीं है वो हमें फिगर आउट करना है. राइट. जी आफ्टर जी. ऑल वी आर हेयर नॉट टू सेटिस्फाई आवर likelihood towards a business, but we are here to earn money. Right. तो यस सर. बेसिकली आपको पैसा कमाना है तो यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे आपको वैल्यू अच्छी मिल रही है और डाउन द लाइन वहां पे ग्रोथ और जो भी टेलविंड सेक्टर स्पेसिफिक है, कंपनी सब स्पेसिफिक है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं आपको देखने पड़ेंगे, बट वही है ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा उस हाई वैल्यूएशन पे एंटर करेंगे तो चांसेस यही हो जाता है कि व्हेन द मार्केट साइकिल चेंजेस तो आप एक फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं. तो विद दिस वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्पीकर मनीष. मनीष जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं बोलता हूँ, आप कंटिन्यू रखो सर. तो जस्ट ज्वाइंड. आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम में यू कैन. जब तक मैं शुभ को एक और चीज बताऊं, शुभ एक चीज आप नोटिस कीजिए. से अ कंपनी लाइक अल्फाबेट एंड गूगल, ठीक है, दे आर ऑल्सो इनोवेटिंग वेरी फास्ट इन द वर्ल्ड. दे आर ट्रेडिंग एट 25-30 का मल्टीपल. if you expand, if you bring that kind of a lower size and companies country like India where the growth will be phenomenal, you can add a premium of 50% which gives you 45-50. but अगर कोई चीज 100-200 पे ट्रेड करती है मल्टीपल में, then it's very difficult to understand के what valuation is already been priced in for next few years of growth. Forget about next few quarters. के अगले 2-3-4 साल तक कंपनी अगर 30-40% पे ग्रो करेगी तो भी वो हो सकता है प्राइस इन हो. यू नेवर नो. बट ऑन द अदर साइड there is one example we have is DMart. It always priced in superior growth, it is always delivering also on superior growth, so is the share price. So it's only about allocation. When you see that risk of allocation, maybe on the flip side your return will also not be that great on a portfolio level, because अगर किसी ने 10-15% डीमार्ट रखा होता at whatever point of time, he would have minted money, except that वो जो साइकिल जिसमें उसमें 5,500 या 6,000 टच किया for a brief period, but it has been a consistent 30-40% kind of compounder for last 3-4 years. और उनका यही हिस्ट्री है कि ईपीएस 30-40% बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी 30-40% बढ़ रहा है, पी आप देखोगे तो वो अभी का अभी में भी महंगा ही है. So if your conviction is that strong, then you can stay back. But yeah, keep a watch on companies growth and what valuation they are trading. जब ग्रोथ स्लो करेगी तो यू कांट सी के पहले ये 70 के वैल्यूएशन में था, आज 60 के वैल्यूएशन में है, because earlier it was pricing in 30-40% of consistent growth for few years, and now they are talking about say 15-20%. So de-rating जो होती है जब ग्रोथ नीचे आती है तो वेरी फास्ट होती है. और ऑन द फ्लिप साइड री-रेटिंग जो होती है व्हेन यू हैव एक्सेलरेटेड ग्रोथ फॉर फ्यू इयर्स, वो भी बहुत फास्ट होती है. सो यू हैव टू गेज इट वेल. दैट्स इट. वी कैन मूव ऑन. या रविंद्र, आई इवन इन्फोसिस का एग्जांपल डॉट कॉम बूम के बाद काफी लोग देते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, तो उस टाइम पे भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था तो दे हैव टू वेट क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स टू गेट बैक टू देयर बाइंग प्राइस.
So with this, we have research Anirudh ji. So Anirudh ji, do you have any question or anything you want to add in limited time? Good evening, sir. Sir, I want to ask, how do you look at gold and silver as an investment in current market scenario where inflation is a risk factor, and also companies linked with gold loan, are they a better investment than gold itself, like Manapuram or Muthoot Finance? That is my question. Thanks, yaar. I used to tweet one sentence very often. I haven't tweeted for a while. There was very old saying, there is a golden rule in the world. Whoever has the gold will rule. तो ये आज का नहीं है, ये फैक्ट 1000 2000 3000 सालों का है कि whoever has the gold rule the world. तो सबसे पहला बात है 10-15% ऑफ योर एलोकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो, 10% आप मान के चलो गोल्ड में होना ही चाहिए. फॉर इंडियन हाउस होल्ड वी आर ब्लेस्ड बिकॉज हम नहीं करते तो हमारे पेरेंट ने इतना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है कि वी आर ऑलरेडी कवर्ड ऑन दैट एलोकेशन पार्ट फॉर द गोल्ड पर्पज. ठीक है. सिल्वर आई एम नॉट वेरी श्योर. सिल्वर इज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी. सिल्वर और गोल्ड का रेशियो जो था ना, आज से आई गेस 100 साल 50 साल की हिस्ट्री हटा दें, ऑलवेज यूज टू बी ट्रेड एट दैट. मतलब लास्ट 40-50 साल में वो 50-55-60 पे ट्रेड करता था, जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है. दैट हैज मूव टू 100 नाउ. Silver is not performing despite all industrial commodity is performing. So I don't have very clear view on silver. बट गोल्ड आपको इन्फ्लेशन भी हेज देता है, रुपी डिप्रिशिएशन में भी हेल्प करता है, एंड एज एन एसेट एलोकेशन होना ही चाहिए. इफ यू सी हायर इन्फ्लेशन कमिंग बैक, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज वन lowering of risk in your portfolio. You should have 10-15% in the portfolio. Coming back to the second point, gold finance company, there is one risk which is happening here. Bank is getting very aggressive on the gold loan side. जो साउथ का मेन मार्केट है गोल्ड फाइनेंसर का, वहां पे आप देखिए फेडरल बैंक वेरी स्ट्रांग हो रहा है, कैथलिक सीरियन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक इतना गोल्ड लोन नहीं करता, उनका कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग है. बट अदरवाइज जो भी है साउथ वाले बैंक्स है, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, दे आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव ऑन गोल्ड लोन. एक फिनटेक कंपनी है रूपीक करके, उसने 2-3 साल में 1000 करोड़ का एईएम खड़ा कर लिया है. सो एवरीवन इज, आज के दिन एक न्यूज आर्टिकल था, HDFC हैज ओपनड lots of gold loan desk at their branches in Maharashtra. So every bank is getting aggressive on the gold loan side. और उसका रिपरकशन भी हमको को दिख रहा है कि एटलीस्ट मनपुरम इज नॉट एबल टू स्केल देयर गोल्ड लोन. उनका 4-5 साल पहले भी टनेज कुछ 64-65 टन था, आज भी 70 के आसपास है. तो जो भी ग्रोथ आई है वो गोल्ड में नहीं आई, वो अदर सेगमेंट में आई है. सो ये रिस्क है. बाकी ज्यादा कुछ लॉस होने वाली बात नहीं है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में. द लोन दे गिव इज वेरी प्रोटेक्टेड, स्मॉल टिकट साइज वाले लोन है, दे होल्ड कस्टमर वेरी वेल यार, वो कस्टमर उनसे छूट के जाता नहीं है जल्दी से. So a point is right now the valuation is extremely cheap. One thing I would just like to say, lots of time when you hear on television or somewhere, they say that this company used to trade at 1.5 ka price to book value and now they are trading near 1, right? They used to do one book value for companies because they are NBFC, but here the problem is they are not able to grow as fast. So better thing I would say is to use PE multiple because they are not able to utilize and reinvest their capital that efficiently. PE में देखोगे तो आई गेस मन्नापुरम 8-9 पे चल रहा है और मुथूट 10-11 में चल रहा है. सो यू कैन हैव योर पिक. एक में 2.5-3% के ऊपर डिविडेंड यील्ड भी है. बट ऑन द इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ ना, I would suggest you have a look at the Catholic Syrian Bank as well. It's a very small bank doing okay, and on gold loan side they are getting very aggressive. 40% of their portfolio is gold loan. So that is one bank you might look at, but since the size of the bank is very small, you can't have a large allocation there. My limited point. But yeah, gold finance is good. Gold though you should definitely have in portfolio. Which bank, sir? Which bank? CSB, Catholic Syrian Bank. ये प्रेम वत्सा की कंपनी है. They hold some 50% stake in the bank. Okay, thank you, sir. Thank you for your view. Okay, thank you, Anirudh ji, for your question, and I hope this Ravi answered it in a very good manner.
So guys, I would request all of you kindly check our handles and if you find value हमें फॉलो कीजिए ताकि आगे भी स्पेसेस में आपसे रूबरू होते रहे। तो अंकित जी आप अपने आप को अनम्यूट करके Hello. हेलो Yeah. Am I audible, sir? Yeah, या Ankit, audible, yeah. Go ahead. Hi, Ravi, sir. Thank you very much for hosting this space. I've been following you for some time, and I totally speak that your tweets are very informative, and the other thing is that your YouTube videos are quite learning, sir. So thank you very much on that. Regarding sir questions, I mean I also concur with your view on the private bank's view. I mean this is a no-brainer right now since the credit growth is actually picking up over the last 2 3 years, and the effect of credit multiplier is expected to see. आपका कंज्यूमर सेक्टर में तो दिख गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको 1 2 साल के अंदर कैपेक्स स्टोरी में वो थ्रू आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. So I totally understand, and the important thing is the valuation is very comfortable. Like for the highest good quality stock like HDFC Bank is trading at a P price to book over 2.6, 2.5, 2.6. Add to that, they are getting merged with HDFC. So the growth is for sure. And the average price to book for the last 5 years is 3.4. So this is a good buy. For sure, private bank story holds really good. My question is on two parts. So just to get you a perspective on the public sector banks and the other NBFCs, specifically PFC and REC. I'll explain my question, sir. So, if the credit multiplier is expected to pick up and हम लोग 8.5% के आसपास ग्रो करेंगे तो 12-13% का लोन ग्रोथ तो होना ही होना है. And if you see the entire PSU bank story, the balance sheet is very clean. I mean, from the board level, they are not allowed to do a corporate lending below AA, right? So, I mean, they're getting cleaner. The credit costs are very minimal, and the valuation is very cheap. Like for Indian Bank is trading at a price to book of 0.35, that too trailing, and they have a ROE of 12-13% for 2 years in FY22 and FY21 also. Similarly for Union Bank also. So what's your view on that? Uh, First, and comparatively, the margins are weaker as compared to private banks, but they consistently aim for 3.1, 3.2, and they are delivering 2.8, 2.9. So possibly in the increasing interest rate scenario, margin will deliver. The cost income ratio is getting better. They are closing the branches. Credit cost is under control. So PPOP में improvement होना चाहिए, and accordingly ROE will inch up, which we are seeing the Union Bank का भी 10% का ROE है इस साल. So first of all, your view on these PSUs, and the second thing is actually two questions. What's your view on the RBI? RBI focus on restricting the NBFC growth after they go above a certain level, right? Restriction क्या नवंबर में TPT circular आया, तो उस पे आपका क्या व्यू है NBFC का long term view? And third question is the PFC REC. I think so. Right now at this story, they gave a very good picture. I mean, अभी बहुत जबरदस्त प्रोफाइल है इनका. डिविडेंड यील्ड आपको 10-12% मिलता है. आपका एसेट क्वालिटी इज फैंटास्टिक राइट नाउ with the PCR as high as 50-60%, GNP are at the lower levels, and the story looks cleaner, sir. But they are lending to a sector which is very difficult, right? So yeah, please share your view on this, sir. Thank you. So first thing on PSU, I agree. Yeah, they are extremely cheap. Right now, the situation, if I have to think about, is like this: they haven't done very strong lending for last few years. आप उनका क्रेडिट ग्रोथ देखोगे तो 4-5%, 6% ही है 2 साल का लास्ट. So they are not growing very fast. So NPA आने का chances बहुत slim हो जाते हैं. NPA used to come, say if you have grown very fast for 3-4 years, उसके 2-3 साल बाद एनपीए दिखते हैं कि आपने क्या गलतियां की ऑन अ बुल रन साइकिल. तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो एनपीए तो आने के चांसेस बहुत कम है. So whatever lower provision happen, it will reflect in their higher profit. But the other problem there is it has broken the faith of investor. अगर पीएसयू में भी ना 2-3 बैंक जो है, एसबीआई को पीएसयू नहीं मानते हैं. एसबीआई फंक्शन लाइक अ प्राइवेट बैंक विद देयर ऑल सब्सिडियरीज व्हिच आर फायरिंग. ठीक है, बाकी सब पीएसयूज में अपने जब वैल्यूएशन देखते हैं ना, आपको ये भी देखना चाहिए उनके पास ग्रोथ इंजन है कि नहीं है. समथिंग लाइक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसीज, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके वो फी इनकम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते. वो
एक्सेप्ट फॉर PSU बाकी में बहुत वीक है किसी किसी में, बट इट्स वेरी वीक. So other thing is there are few PSUs, something like Bob, Canara, and you rightly pointed out Indian Bank. These three are doing well in terms of containing their slippages and PPA, GNPA, and NPA. They would be trading at, I guess, 2.5, 3 PPOP के valuation में चलते होंगे, which is extremely cheap. बट आप पैसा तभी बना सकते हो व्हेन से यू आर बाइंग एंड फ्रॉम योर हैंड HNI बाइज, फ्रॉम HNI हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाई, एंड फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सम FII आल्सो बाई. वो जब चेन होती है ना तो वैल्यूएशन री रेट होता है. अब री रेट नहीं होगा तो अब वो हो सकता है डी रेट भी नहीं हो, बिकॉज वैल्यूएशन इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली चीप. अगर आप ROE 8-10% बनाते हो तो बुक वैल्यू 8-10% बढ़ेगा और आपका शेयर प्राइस भी 8-10% बढ़ेगा. But for re-rating to happen, a bank or even a PSU bank has to move from a weaker hand to stronger hand. कि मेरे हाथ से निकल के HNI के हाथ में जाए, फिर बस HNI के हाथ से निकल के MFs के हाथ में जाए, म्यूचुअल फंड के, वहां से निकल के FIIs के हाथ में जाए, तो वो री-रेटिंग आपको चैनल दिखता है. वो विजिबिलिटी बनानी मुश्किल है, बट यू कैन हैव फ्यू ऑफ दीज गुड PSU नेम. स्मॉल यार, यू कांट हैव लार्ज, बिकॉज इनके रिस्क जो आते हैं ना आपको समझ में नहीं आता. दे आर वेरी लंपी यार, ऑन द रिस्क साइड दे आर वेरी लंपी. एक लोन आता है एंड आपको पूरा बुक वैल्यू में इम्पैक्ट दिखता है. ठीक है, सो दिस इज द व्यू ऑन फ्यू ऑफ द PSU banks. No clear cut view, I am not invested there, but they are extremely cheap, that I can say. One thing will happen if there are investors who have come on board, then they may take it to a re-rating level. Otherwise वो सस्टेनेबल जो पैसा होता है ना, कि आप लार्ज प्राइवेट बैंक्स में आओ ना, तो यू कैन मेक दैट 12-15% फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years. वो यहाँ पे मुश्किल है. यहाँ पे व्हाट यू कैन प्ले इज योर री रेटिंग फ्रॉम 0.3 0.4 book value to 0.5 0.6 book value. You're right, you're trying to play that right, rather than हर साल वो 15% क्रेडिट ग्रोथ करेगा, हर साल 14-15% ROE करेगा. वो आपका इन्वेस्टमेंट केस नहीं है. ठीक है, that's my limited view on PSU. Second was for PFC REC, right? PFC REC, I also agree with you. REC PFC, I also agree with you. I will first cover the risk part. आप देखो उनमें 18-20% of the portfolio is risky. ये जो स्टेट वाले पोर्टफोलियो है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाले रिस्की पोर्टफोलियो, जैसे जैसे इलेक्शन इनके नियर आते हैं ना, ये लोग पूरा कॉफर्स अपना खाली कर देते हैं. जो भी स्टेट यूटिलिटीज कंपनीज होती है ना, वहां से जितना पैसा होता है बंटवाते हैं. सो आपको फ्री आपका कलेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का टाइम पे, उसके वजह से GNPA होता है. वो अभी कंटेन्ड है. ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड देयर इज, अगर आपका ग्रोथ यही रहा ना, लास्ट 4-5 साल का ग्रोथ REC में आई गेस 12-13% का है. इफ दे मेंटेन दैट 12-13% ग्रोथ and slippages are not high, because as you rightly mentioned, REC, I remember their PCR is about 68-70% right now. So your profitability will be higher than what it used to be earlier. And if you maintain that 18-20% kind of ROE with 12% dividend yield, it's a decent investment. Even I will make a disclosure, I hold REC. But don't go very optimistic कि ये 0.48 आज के दिन REC का valuation है, ये वहां से हट के 1 हो जाएगा. I am not invested with that view. I only thought कि it will continue to pay at least 12%, 11% dividend, with which I am happy. अगर वो 15% ROE जनरेट करता और प्राइस नहीं मूव करता, so I will have a D-rating of multiple 10% every year. तो आज के दिन 0.48 है, एक साल बाद 0.44 होगा और दूसरे साल 0.4 होगा. वहां तक मैं खुश हूं कि मेरे को 11-12% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है. कुछ री रेटिंग हो गई या डी रेटिंग कम हुई, दैट इज माय एक्स्ट्रा रिटर्न. बट आई लेट्स सी, आई फाइंड दिस केस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट, सो आई होल्ड REC. There was one more question if I remember. So yeah. I was asking about your view on the RBI restricting the growth of larger NBFCs greater than 50,000 crores of AUM. It's very difficult to have a view, because one thing, if I mean, you have to respect sector. I mean, so not to the that's I mean specific companies, but the companies who are graduating to that AUM possibly in 2 years down the line, will they be able to control their growth, or इस market में securitization बढ़ेगा?
and yeah, I mean they will be selling off their loans, or क्या होगा sir? I mean I mean it's okay sir, yeah, just review. Yeah, not very clear view, but something I like RBI action a lot. Yeah, they are decent enough. Yeah, compare with other central bankers. Yeah, they are not very gungo about printing और हमेशा safe खेलते हैं. And though slippages रहते हैं, being in India, you can say कि ILFS हुआ, इतने सारे हुए, they were sleeping. But you see the slippages outside countries, they are extremely large. Yeah, even with this kind of slippages happening, RBI was able to contain. The other thing is what they are trying to do on the NBFC side. Yeah, if NBFC is becoming so large, it need to be regulated. The only reason otherwise यार पैसा तो deposit से भी काफी लेते हैं. It becomes a risk for depositor and other money lenders to these NBFCs, because these NBFCs now has grown to a size that they are even larger than the banks. अपने जितने भी साउथ के प्राइवेट बैंक्स है, उनका बैलेंस शीट 50,000, their balance sheet is 30-40,000, less than 1 lakh crore. Few of these NBFCs now they are like Sriram Transport, Chola might be reaching 1 lakh crore soon, but they are growing so fast that you also need to have a handle over there, because unregulated entity with so much size of lending power can't be left doing business on their own. Yeah, they need to be regulated. बाकी अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स पहले बहुत रिलैक्स थे. आज से 4-5 साल पहले आई गेस 180 डेज का GNPA का साइकिल था, फिर 90 का किया, फिर अब तो वो एग्जैक्टली एज अ बैंक ले आए हैं फॉर NBFCs. This is good, यार. I तो completely support this move. If you see all other NBFCs across the world, someone was telling me कि 10-12 साल का साइकिल होता है, generally all NBFCs get wiped out. And this is not the phenomenon only for India, but across the world. Okay, these are unregulated entity. Bull market may you feel like there's no other business as good as these kind of thing, but in bear market, all these NBFCs get wiped out. So even in India, if you see जो 90s के अपने NBFCs थे, hardly any of them are in existence. Few of the NBFCs you have to respect. Let me take one name. The one NBFC I have not invested, I like a lot, respect a lot, is Sundaram Finance. 94-95 में IPO किया, उसके बाद एक पैसा नहीं उठाया मार्केट में. उनसे पूछो डीमॉन हो रहा है, GST आ रहा है, this kind of lockdown, he will say that I've seen all these kind of cycle in last 20-30 years. We do business with our conservative manner. ज़्यादा शोषा नहीं है. They hardly come on media. You will hardly hear about them. वही 15-18% kind of growth, वही 2.5 bull cycle में 3 का multiple, and you will generate that kind of return on portfolio. But yeah, if you ask me whether they should be regulated, given their size, I guess they should be. Yeah, thanks, Ravi. I hope this answered questions from Ankit. So Prateek has raised his hand quite a long. So Prateek, Anirudh ji, we come after Anirudh to you. I mean, yeah, Prateek. सर PFC RFC में मेरे भी कुछ इनपुट्स हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ कि PFC RFC की प्रॉब्लम इन कंपनीज में नहीं है, प्रॉब्लम डिस्कॉम में है. तो उनके परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने एक जो प्रोजेक्ट निकाला है, वो 2025 तक वो सभी इलेक्ट्रिक मीटर्स है ना, उनको प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग. और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं है, कि जब GST वगैरह आया था ना, तब है ना स्टेट ने सेंट्रल ने बोला था कि वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है. अब जो उसके बाद का जो पार्लियामेंट में है ना, जो अभी तक वही है, उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं आया. जो पहले किया गया था कि 2022 के बाद से उनका जो सिस्टम, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि वो अपने स्टेट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग उनको रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगी. तो उन रिफॉर्म्स में डिस्कॉम के रिफॉर्म्स भी बहुत सारे थे. तो अगर वो कोई भी स्टेट अगर वो रिफॉर्म्स करता है तो उनको रेवेन्यू शेयरिंग ज्यादा था. तो वो डिस्कॉम लेवल पे प्रॉब्लम्स है, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी ना, PFC RFC के NPA वगैरह ये बढ़ते रहेंगे ग्रेजुअली. इनको जितना इलेक्शन ईयर आएंगे उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रॉब्लम है ना डिस्कॉम में, वो टैरिफ रेट्स है. मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मैंने थोड़ा अच्छे से फील करा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं राजस्थान का बताता हूँ. राजस्थान में 70 तरह की टैरिफ्स है.
मतलब आप 70 तरह के कॉम्बिनेशन लगा के टैरिफ लगा सकते हो। तो इनमें इतने लूप होल्स है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी मॉडल इतना इसलिए सक्सेसफुल हो पाता है क्योंकि उधर वो उन्होंने टैरिफ रेट्स को कम कर दिया, तो लूप होल कम रह पाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो बंदे बैठे हैं उनके हाथ में बहुत कम चीजें होती है कुछ करने के लिए। तो वो जो लूप होल है उनका बेनिफिट एंड कंपनियों को नहीं मिलता जो लार्ज बिल है। और सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिसिटी पीएफसी आरएफसी या फिर पीएसबी बैंक्स अदर देन एसबीआई, ठीक है, ये सब तब चलते हैं। देखो हर सेक्टर की एक साइकिल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल को समझना होता है इंस्टेंट ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिव इन्वेस्टमेंट। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकिल पब्लिक सेक्टर बैंक की साइकिल तभी चलती है जब ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ है ना डबल डिजिट होती है। क्योंकि डबल डिजिट तब होने का मतलब क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट लैंडिंग है ना वो उसका चक्कर चालू हो जाता है। तो अभी वो चक्कर जाम है फ्रेश। अभी अपन ने इतनी ग्रोथ देखी, जीडीपी इतनी आई, बट कॉर्पोरेट लैंडिंग नहीं हो रही है। जो ग्रोथ है वो आईटी में और इन सब सेक्टर्स में है। तो आईटी वाले इतने लोन लेते नहीं है अभी भी। सर्विस जो पीएमआई डेटा जाए उसमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा थी, तो बट सर्विस सेक्टर वाले लोन नहीं लेते। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका काम कॉर्पोरेट लैंडिंग ज्यादा है। और इनको इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ये टूल है इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट के पास। तो वो गवर्नमेंट उनको उस तरीके से टूल की तरह यूज लेती है। आपको एज ए इन्वेस्टमेंट लेना है तो 10% से ऊपर जब जीडीपी की ग्रोथ आए ना तब लेना चाहिए, जो मेरा व्यू है। और अभी एक गोल्ड के लिए भी, गोल्ड लैंडिंग कंपनीज के लिए बोला था, उनकी गोल्ड लैंडिंग कंपनी तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब इंटरेस्ट रेट की साइकिल डाउनवर्ड होती है। जब अपवर्ड होती है ना तो उनकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो इतनी इजीली नहीं होता कि पास ऑन कर पाए। और अभी वाले मार्केट में तो क्या होता है कि गोल्ड लोनिंग के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उनका इजीली इतना पास ऑन करना बहुत टफ होगा। तो उनके मार्जिन श्रिंक होते जाएंगे। अभी भी आप जाके किसी भी बैंक के अभी रिजल्ट देखोगे ना तो सबके एनआईएम है ना 4% है एक्सेप्ट कोटक बैंक। और कोटक बैंक ने अभी मार्केट का आउटperform करा है। कोटक बैंक का 4.86 था और रिमेनिंग 4%। एचडीएफसी बैंक 20 क्वार्टर्स के लो पे एनआईएम है। तो तो मैटर वही करता है कि ग्रोथ साइकिल देखनी पड़ेगी। ये जो पीएसपी है तो वो तब परफॉर्म करेंगे जब 10% से ऊपर ज्यादा ग्रोथ रेट होगी, जो मेरा इनपुट है। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू। सो अनिरुद्ध जी, आप भी बीच में हैंड रेज कर रहे थे और मैं सभी स्पीकर से थोड़ा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा टाइम का क्रंच है तो वो अपना लिमिटेड टाइम में ही अपनी सारी बातें कहें। या अनिरुद्ध जी? Sir, my question is again just a single one-word answer. Would you go with private banks or PSU banks first? And second one, that subsidy which was linked to housing schemes, where a subsidy of 1.5 to 2 lakh was disbursed to the loan applicant, it is being stopped from today, from this month or coming month. So, will it affect the business of HFC companies? That's the question. On investment side, my humble submission would be I am invested in private banks, and that's also the larger ones. I'm not very clear about the second question, HFC, what subsidy which has been removed and how they might impact the growth. Because lots of growth which we have seen, the companies which I like on the HFC side is something like Canfin Homes. But how much impact they had from this, I don't know in the previous cycle. Maybe AU and Awas used to have this, Awas especially has the growth leg up because of this subsidy and might be having a lower growth. But I'm not very sure how much of the growth was supported because of the subsidy. And if the subsidy is not there, say Awas growth would have been from 35% to 20%. I can't take that kind of view. So I'm not very sure how the impact would be from the removal of subsidy. But yeah, on investment side, I am bullish on private banks, larger private banks especially. Thank you, sir. Thank you for your view. Thank you, Anirudh ji. And okay, we have. So guys, बाकी भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके जो सवालात हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी कुछ ऐड करना चाहेंगे लिमिटेड टाइम पे। मैं बोलना चाहूंगा 1 मिनट। ये अनिरुद्ध का जो क्वेश्चन था ना सब्सिडी को लेकर, सब्सिडी 31 मार्च 2022 से बंद कर दी है सरकार ने।
तो और उसके बाद भी हाउसिंग लोन का डिस्बर्समेंट लोकल लेवल पर इतना रुका हुआ नहीं दिख रहा। ये सिर्फ मैं अपना एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन विच कम्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स आई एम शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू त्रिवेदी जी, थैंक यू। और बेसिकली जैसे हाउसिंग या रियल एस्टेट की हम अगर बात करते हैं तो ऐसा है कि अगर आपको डायरेक्ट उस सेक्टर को नहीं प्ले करना है तो आप डिमांड के बेसिस पे एंसिलरीज में भी थोड़ा लुकआउट कर सकते हैं कि जो हाउसिंग कंपनीज जैसे बेसिकली बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। या राजीव मलिक जी, आपने हाथ रेज किया है। प्रिंस जी थैंक यू। मैं रविंदर जी से ये कहना चाहता था कि देखिए आप और कुछ हमारे लर्नेड स्पीकर्स जो हैं जिनमें प्रतीक है, रिसर्चर है, त्रिवेदी जी हैं, कोमल सिक्योरिटीज वगैरह, मतलब आप देखिए कि कितनी डीप इन डेप्थ रिसर्च इन्होंने की हुई है डिफरेंट स्टॉक्स पे रविंदर जी। और आप भी मतलब एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया हैं ऑन द मार्केट की। आपने इतने डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स और थीम्स पे लोगों को अटेंड किया, जवाब दिए हैं। पर सवाल ये है रविंदर जी कि एक कॉमन इन्वेस्टर जो है, क्या उसका माइंड इतने फैक्टर्स, इतनी चीजें, इतना एनालिसिस, इतनी कंपनीज, इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो, उसको कॉम्प्रिहेंड करके बेचारा क्या कोई डिसीजन ले सकता है वो एक स्टॉक पे या एक सेक्टर पे या एक थीम पे, जब स्कैम्स भी हो रहे हैं, प्रोमोटर्स बंगलिंग भी कर रहे हैं? तो मैं रविंदर जी एक सबमिशन ये रखना चाहूंगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो, जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो कुछ कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट की भी बात होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे जो आज सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि आप निफ्टी बीज लीजिए, बैंक बीज लीजिए, आईटी बीज लीजिए, फार्मा बीज लीजिए। आप एक एक कंपनी के इतनी रिजल्ट्स और बैलेंस शीट और प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, पागल हो जाएंगे आप, वो नहीं कर सकते। उसके बाद भी आपकी कंपनियां ऐसी निकलेंगी जो आधी आधी हुई हैं। बहुत सियाने लोगों ने कितनी ही कंपनियों में धोखा खाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं रविंदर जी और प्रिंस जी मेरे साथ आज एक स्पेस में सुबह भी थे, कि जो एक आम इन्वेस्टर है उसको क्यों ना वो एक बहुत ही सिंपल वे में, अगर निफ्टी 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाती है, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिर जाती है, तो वो ईटीएफ के द्वारा क्यों ना इन्वेस्ट करे और अपनी वेल्थ बिल्ड करे और ट्रेडिंग भी करे, स्विंग ट्रेडिंग भी करे और पैसा भी कमाए। तो रविंदर जी इस पे अपने विचार दीजिएगा। दो चीज सर, थैंक यू फॉर सच ए काइंड वर्ड। और इतना ट्रैक करना फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर, इवन फॉर पीपल फ्रॉम मार्केट, इज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड एग्री। ये मेरे एक एम्प्लॉय कहते थे कि मार्केट का कीड़ा होना चाहिए, तो वो जब तक नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। सो वो बात है। Plus, for retail investor, let me put it this way. You made a very valid point how retail investors should invest in India, despite me being so much dedicatedly tracking companies in the market. If you ask me ideal way for investment, I'll give few points which you can note down and you can circulate wherever you feel people, retail investors are interested in investing in the market. आप कुछ मत करिए. Whenever you see Nifty going down by say few percentage 2-3%, आप उस वीक में आप अपना एक SIP का एक अमाउंट डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट मंथ मेरे पास 50,000 की सेविंग होने वाली है। जिस वीक भी निफ्टी 2% या 3% नीचे जाएगा, मैं 10,000 रुपए का SIP करूंगा। आप निफ्टी 50 में कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कर सकते हैं। आप इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखिए, आपका अच्छे से अच्छे लर्नेड इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न बनेगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो एक्चुअली गलतियां हो जाती है, बिकॉज वी एनालाइज टू मेनी डेटास विच डजंट ब्रिंग इनसाइट। अदर थिंग यू कैन डू इज, एक चीज हम लोग ट्रैक करते हैं विच इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जनरली बोलते हैं वॉलेटिलिटी जब ऊपर जाती है दैट मीन्स मार्केट खराब है, पैसा नहीं बनेगा। जनरली ट्रेडर क्या होते हैं, 20 के ऊपर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब जाता है ना 20-30, तो वो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। वेन एवर यू सी 20 एंड अबव वॉलेटिलिटी इंडेक्स,
do your weekly SIP in the market, your IRR would be phenomenal. आप नेक्स्ट एक साल जिस दिन आपको लगे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर है, आप अपना एक SIP 10,000, 25,000 या 1 लाख करना है, वो आप करते जाइए और 4-5 साल बाद उस SIP का रिटर्न देखिएगा. You will get amazed that you made return which is higher than most of the mutual funds in India. या थैंक्स रवि, सो ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड. और बहुत ही वाजिब सवाल था जिसका कि वाजिब जवाब दिया गया है कि इन्वेस्टिंग में कॉमन सेंस बहुत ही जरूरी है और ओवर एनालाइज, ओवर इवेल्युएट करना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है. सो विद दिस वी Actually, रिक्वेस्ट. Prince, I would like to add one more thing. Generally होता क्या है ना कि if you analyze too much of data, then you will become a good analyst. For an investor, you need to have a feather touch kind of hold on data and think about, don't think too much about the underlying data, but think about perspective. That will make you a better investor. But for retail investors, simple sa gyan ke say market is very bad for last 5-6 months. For next 5-6 months or 1 year, it may remain bad. आपका अगर मंथली सेविंग 40-50,000 है, आप वीकली 10,000 का SIP कीजिए. You come back and congratulate me after 3-4 years. You will do phenomenal return. Forget about all the gyan on the companies I have given. Chuck them to dustbin. It will not be of any use compared to if you stick to this basic one line that next 1 year market seems to be choppy. You decide whatever your saving amount would be for every month. आप वीकली SIP करो, फ्राइडे क्लोज में आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. For next 1 year, you add on that SIP and come back to see return after 3-4 years. You will be amazed. एग्जैक्टली. और हमारे जो भी स्पेसेस होते हैं उसमें हम इस चीज को बार बार रीट्रेट करते हैं कि हमें ओवरनाइट रिच बनने की या कुछ मैजिकल करने की जरूरत नहीं है. हमें कॉमन सेंस के साथ थोड़ा खुली आंखों से, खुले कानों से मार्केट को, मतलब जो भी है, जो लर्नड पीपल है उनके टच में आके नेटवर्किंग के थ्रू या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप अपने एंड से जो बेस्ट पॉसिबल पढ़ सकते हैं. और कॉमन सेंस का आप अगर यूज करेंगे तो यू कैन ऑब्वियसली जो काफी इंडेक्सेस है, या जैसा कि रवि भाई ने बोला कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है उनको आप बीट कर सकते हैं. तो पहले गाइज मैं सभी ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट करूंगा, यार आप फॉलो करने में कंजूसी कर रहे हैं. आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम सबके द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज स्पेस है इसमें रवि भाई और बाकी पैनलिस्ट के थ्रू दी जा रही है. और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि more and more learned people are brought to this space so that everyone can get benefited. तो एक ये म्यूचुअल लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली हमारे हैंडल से जुड़िए, ताकि अगली बार जब स्पेस होगी तो आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको नोटिफिकेशन किसी और के थ्रू ना मिलके डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनगोइंग स्पेस है. तो प्रतीक, आपने हाथ उठाया हुआ है, जो भी आपका सबमिशन है कम टाइम में कहिएगा प्लीज. हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि ETF ही जो प्रॉपर टाइम और रिसर्च नहीं कर सकती, ETF ही बेस्ट है. 40% निफ्टी की कंपनी जैसी है जो निफ्टी का परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाई है लॉन्गर पे, 20-22 साल के पीरियड में भी. और केवल 8-10 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर पाए, बाकी निफ्टी के अराउंड 1-8% ही ऊपर नीचे का ही है. तो ETF ही बेस्ट होता है अगर आप रिसर्च और इन्वेस्ट में ये मतलब रिसर्च को अगर प्रॉपर टाइम ना दे पाए. और सर ने, रविंद्र सर ने जो बोला था विक्स, ये है कि 20% है, उसको टेक्निकली है कि 20% निफ्टी में मूव आ सकता है. तो बेटर होता है कि विक्स हायर होगा ना तो निफ्टी में रिटर्न की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है. और एक चीज है, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. नॉर्मली आई यूज टू से कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्ट करो बिकॉज स्मॉलर कंपनीज गिव यू लार्जर रिटर्न. बट माई वन अंडरस्टैंडिंग इन दिस recent cycle is correction has been in the leading companies is because of FII selling, and when FIIs come back, they will not come back in the mid cap and the smaller companies. They will come back in the leading space of India. So you keep on for this next 1 year, I would say you do your ETF because your expense ratio there is also 0.1% instead of mutual fund where you will having expense ratio of 1% or something like that. So you have expense ratio of 0.1% in the passive investing. You select the Nifty 50 companies because I think once this cycle turns of the FII selling, they will come back in the leading companies of India. They will, so there you will make a larger than whatever normal return is.
And also one thing I use, this is not a kind of promotion, but in my Twitter handle, you will see a YouTube channel as well. I've analyzed few companies, whatever my limited understanding on those companies, their business, their sector, their valuation as well. So if you like them, please have a watch. एंड गाइस लेट मी टेल यू, मैं रविंद्र जी के टच में, पहले मैं उनका हैंडल पे जो उन्होंने यूट्यूब का वीडियो शेयर किया था आईजीएल का, गैस सेक्टर का, तो उसके थ्रू ही टच में आया था और फ्रॉम सिंस देन वी हैव बीन इंटरेक्टिंग, और इन्हीं के थ्रू मैं स्मार्ट सिंक सर्विसेज के अंकित कानोडिया जी के टच में आया. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड शेयरिंग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन और मे बी जो इनसाइट्स हैं. तो ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच लर्नड पीपल को लेके आए, और जो डाइवर्सिटी है कि कोई ट्रेडिंग से है, कोई ऑप्शंस का है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कोई रिसर्च एनालिस्ट है, और जैसे कि अंकित जी है हमारे, वो सेबी रजिस्टर्ड आरआईए हैं, तो उनकी अपनी सर्विसेज भी हैं. तो गाइस ओवरऑल जो ये इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, तो इसमें हम जो एजुकेशन का एलिमेंट है, वी ट्राई आवर बेस्ट ऑल द टाइम, और हम ट्राई करते हैं कि स्पेसेस को जितना इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं, वी ट्राई टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. और उसके बाद ही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वैल्यू दिखती है कि भाई आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको कुछ टेक अवेज या वैल्यू एडिशन रहेगी, तो आई वुड वंस अगेन रीइटरेट, आप रविंद्र के यूट्यूब चैनल और उनके हैंडल को, और मेरे राजीव जी और प्रतीक जी जो भी पैनलिस्ट रहे हैं, काफी हमारे अनिरुद्ध जी हैं, वेल्थवर्स हैं, तो आप उनके हैंडल्स को चेक करिए. अगर आपकी वो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से मैच कर रहे हैं, वो सिंक में है, और आपको लगता है कि इन वन वे और द अदर कि आप उससे कुछ बेनिफिट हो पाएंगे, तो आप जरूर हमसे जुड़िए. और इसके अलावा जो भी हमारी स्पेसेस में जो नाम लिए जाते हैं, वो कोई सॉर्ट ऑफ एंडोर्समेंट नहीं है. वो बेसिकली ये है कि एक आउटलुक हम डिस्कस करते हैं, आप और हम, तो वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं होती है, उनको बस पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए. बट हाँ ये है कि जैसे रविंद्र जी हैं, उनको 1.5-2 दशकों का रिसर्च का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और जैसे अंकित जी हैं, उनका वो भी काफी टाइम से है. तो जो भी है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, मार्केट साइकिल्स देखी हैं, हर एक सेक्टर कैसे बिहेव करता है, कौन से सेक्टर में अप साइकिल चल रही है, डाउन साइकिल चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एकदम से इनिशियली नहीं समझ आती है. एज जैसे कि हम मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे और सीखने के लिए, जैसा कि रविंद्र भाई ने, कि मार्केट के लिए आपको पागलपन चाहिए सीखने के लिए. मार्केट में सीखने को इतना है जिसकी कोई मतलब कोई एंडलेस है, लिमिट ही नहीं है. बट वही है कि एक डायरेक्शन आपको प्रॉपर मिले और टाइमली मिले, तो वो बहुत सारी चीजें आपकी आगे की इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको काफी इजी हो सकती है. तो एक और हमारे पास रिक्वेस्ट आई है हसमुख जी की. तो रवि, आर वी गुड ऑन टाइम? It's already 1.5 Yeah, hours. yeah, last few question and then we'll wind up. कुछ तो काम भी है, Sunday evening, Saturday evening dinner time. राइट. सो हसमुख जी, आप Last few question. या लास्ट क्वेश्चन हसमुख जी से लेते हैं. हसमुख जी आप पूछ सकते हैं. आई थिंक देयर इज सम इशू रवि, तो कोई नहीं, हम रैप अप करते हैं. कुछ कंक्लूडिंग आपके रिमार्क्स हो तो आप बताइए, फिर हम इसको रैप अप करते हैं. No, concluding remark is same here. Keep on tracking market. One thing which I find bit concerning among new investors is, yeah, you get too much bogged down with investment idea. You need to hold stock. The stock doesn't need to hold you. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आप इन्वेस्ट करो, स्टॉक आपको होल्ड नहीं करके रखा है. सो if you discuss too much of your research idea on social media, on WhatsApp, you will be bogged down if things reverse, and then you will not be able to exit that position. So have this stock, you own the stock doesn't own you. With that kind of approach, do investing. If you are not a full-time participant, humble request, SIP is one of the brilliant idea. You do SIP for next 1 year in the Nifty 50 stocks. You will make decent kind of return. You don't need to, because if you are not on the full time on this kind of job, it's better to focus on where you are good at, whatever service or business you are doing. Generate that extra salary income from that end and make it earn extra return passively from the market. That should be your goal.
that should be my concluding remark. Yeah. थैंक्स रवि। आप अपना सैटरडे का डिनर ले सकते हैं। हमने अंकित भाई को बुला लिया है, तो विल बी आस्किंग हिम हम्बली। तो इनके पाले में अब गेंद है, तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू गिव हिज स्मॉल इंट्रो। और जो वेबिनार जो मैं गलती से नेक्स्ट संडे है और मैं कल का बता गया था, उसके बारे में भी ऑडियंसेस, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो अंकित, ओवर टू यू। Prince, I would be on listening mode since Ankit is speaking. I will listen to him, but श्योर I will श्योर be श्योर। on listening mode राइट now. राइट। Chalo, thanks, ओके yeah. ब्रो। Thank you, Ravi. Thank you, Prince, for being. Sorry, I was there, but due to some personal thing, I had to just be off. So I enjoyed listening to Ravi all the time. And let me know, Prince, if there are any questions. We can take that up. या अंकित, बेसिकली आपका थोड़ा मार्केट आउटलुक पे जो अगर आपका कुछ व्यू हो, और इन द मीन टाइम अगर ऑडियंसेस कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप थोड़ा इनको Sure. अपने बारे में ब्रीफ करेंगे, तो Sure. Great, दे great, विल great. बेटर नो कि व्हाट काइंड Done, ऑफ done. क्वेश्चंस दे कैन So, आस्क। sure, Prince. So, hi everyone. I'm Ankit Kanodia, founder and partner of SmartSync Services. We are SEBI registered investment advisory firm. हम लोग HNIs को और रिटेल इन्वेस्टर्स को दोनों को केटर करते हैं। HNIs के लिए हमारी एडवाइजरी सर्विसेज रहती है, एंड रिटेल के लिए हमारा मिशन स्माइल प्लेटफॉर्म है। हमारे पिन ट्वीट पे आप जाके देखोगे तो आपको काफ़ी उसके बारे में पता चल जाएगा। हम लोग लास्ट 1 साल से कर रहे हैं। कुछ 15 वेबिनार हमने खुद के रिसर्च के किए हैं। आइडिया यही रहता है, हम लोग रिकमेंडेशन, टारगेट प्राइस, ये सबको नहीं मानते। वी आर more or less buy and hold long-term investors, and we try to analyze good businesses and discuss it with our audience. So 15 महीने का हम लोग ने 15 वेबिनार कर चुके हैं। अभी रिवैम्प कर रहे हैं हम लोग मिशन स्माइल को। वी वर लकी टू ब्रिंग प्रोफेसर संजय बख्शी ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Vishal Khandelwal of Safal Niveshak is going to come on 18th. We had a wonderful session today with Jatin Khemani of Stalwart Advisors. He presented on Usha Martin, and then every month we present on one business. Idea is to deep dive on the business and tell you all the positives and negatives. That's it. And in terms of the question which Prince you asked about market का क्या लगता है? Generally, I never have any view in the market. I am always a buyer, so you can call me a bull in that sense. But I'm never leveraged. I've never done any intraday trading or any kind of F&O position. I've always been a cash market buy regularly and buy for long term. So I've been investing since last 10 years. मेरे 2 स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐसे है जो 9 साल से मैं होल्ड करके रखा हूँ, एंड आई स्टिल लुक एट देम एज लॉन्ग टर्म होल्डिंग. So that is pretty much about myself. You can ask me any question related to long term investing. Current market में मैं यही बोलूँगा कि there are many businesses which are very attractive. Try to focus on those businesses. Try to focus on those industries which you understand, because volatility will be there and prices can be up and down. तो जब आपकी बिजनेस की समझदारी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कन्विक्शन अच्छा रहेगा, तो प्राइस गिरने पे आपको उतना डर नहीं लगेगा. तो किसी के भी टिप पे, रिकमेंडेशन पे कोई स्टॉक लेने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप जब मार्केट, क्योंकि मार्केट एक तरफ नहीं चलता है. लास्ट 1.5 साल एक तरफ चला, तो लोगों के दिमाग में ऐसा हो, नए लोगों के खासकर जिन्होंने नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 2019, 20 या 21 में, उनको ये होगा. तो आप जितना बिजनेस को समझोगे डिटेल में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. दैट इज द ओनली एडवाइस. एंड वी हैव दिस 2 मंत्रा which we always try to say: don't predict, prepare, know few business and know them well. ये 2 अगर आप मूल मंत्र मान के चलोगे तो इन्वेस्टिंग में काम करना इजी हो जाएगा आपके लिए कंपैरेटिवली. या थैंक्स अंकित, दैट्स वेरी क्लियर एंड मतलब बिल्कुल आपने दिल से बोला, और जो चीज है वो जनता को समझ में भी आती है. वी कैन इको विद योर थॉट्स. इतनी क्लैरिटी आप रखते हैं अपनी बातों में. तो गाइज, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं अंकित जी से. और मेरा एक बहुत ही मतलब अंकित जी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है. वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी
कि जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है, जैसे मान लो एडवाइजरी हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, तो इन चीजों में थोड़ा ना हम हेजिटेट करते हैं और अपने आप मतलब जैसे स्विमिंग करी नहीं कोच के बिना और पानी में कूदने का प्रयास करते हैं। तो इस पे जैसे कि मार्केट में जो एडवाइजरी या फिर जो रिसर्च में है, इतनी टीम लगा के और इतनी थोरो रिसर्च करते हैं, तो एक ये पहलू है, इस पे आपका क्या टेक रहेगा सर? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रिंस। आई एम अज्यूमिंग कि किसी किसी को हिंदी में भी सुनना है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। तो see, I always believe that there are good people and there are bad people. There is no good profession or bad profession. तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पीएमएस खराब है, या बोलते हैं म्यूचुअल फंड खराब है, या एडवाइजरी खराब है, या क्या बोलते हैं कि अपने जो म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं वो लोग गलत है। कोई गलत नहीं होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं है। दैट इज फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियरली व्हाट वी बिलीव दैट ऑल प्रोफेशंस आर गुड, no professions are bad. In all professions there are bad people, there are good people. Try to find good people, try to find trustable people. अगर एक आपका अच्छा एडवाइजर है, इवन अगर वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है, इफ ही इज समवन whom you can trust and you have been trusting him or her for a long period of time and he or she has always advised you in the right way, if that has worked for you, डोंट गो बाय एनी अदर्स ओपिनियन कि अरे नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूटर लोग तो खाली गला काटते हैं, वो लोग उनको जो कमीशन मिलता है उसी से होते। नो, दैट इज नॉट राइट। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज, every profession has its own way of making money, but ultimately you have to find your own understanding. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। मैं अभी एडवाइजर हूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं सारे डिस्ट्रीब्यूटर खराब है, वो गलत होगा मेरे तरफ से ऐसा बोलना। मैं आपको बोलता हूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कमीशन लेता भी है, देर हैव बीन मेनी डिस्ट्रीब्यूटर, इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन अहमदाबाद, आई नो अ डिस्ट्रीब्यूटर who has been a very good distributor for more than a decade now, and because of his advice there have been so many good people in different walks of life, some doctors, some lawyers, who have taken his advice and have made a very good equity and debt portfolio. So what is wrong with that kind of a person? So I will never say ki, anything is bad, but only thing which I would always suggest to any retail investor, if you have no exposure to equity and if you have no understanding of equity, as I would repeat what Ravi has said, try to focus on what you are good at. सबसे पहले आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर अच्छा करो। अगर आप उस पर अच्छा करोगे तो अपने आप आपके पास पैसे होंगे, पैसे आपके पास होंगे तो आप अपने आप सेविंग कर पाओगे, और सेविंग कर पाओगे तो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस। मैक्सिमम पब्लिक के पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारा बिजनेस या जॉब ऐसा है कि हम लोगों के पास वो हम लोग को सेविंग तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद हम लोग गाली देते हैं कि ये खराब है, पीएमएस वाले खराब है या एडवाइजर्स खराब होते हैं। पहले आप अपने घर पे सब कुछ ठीक कर लो, और जब आप वो ठीक करोगे देन यू हैव plethora of options. Start with the basic things like have a term plan. You don't need an advisor to a term for a term plan. You don't need a service of SmartSync services, and take a policy based on your own research. Of course an advisor can give you something better, but right, so that is what I would like to say. या वेरी ब्रिलियंटली और क्लियरली सेट बाय अंकित। ट्विटर पे सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अंकित जी, ऐसा रहा है बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि जो लोग हैं, जो स्क्रीनशॉट गैंग जिसको मैं बोलता हूँ, बेसिकली दोज हु आर पोस्टिंग हाइपोथेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस थिंग्स, और बहुत मतलब देखो ऑब्वियसली आपने कहा कि गुड पीपल बैड पीपल आर एवरीवेयर, तो ये हमारा भी ड्यू डिलिजेंस बनता है कि वी नीड टू फिगर आउट कि भाई कौन सही है और कौन नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो पता चल जाता है, राइट? स्ट्रेट अवे तो नहीं पता लगता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाहे वो हार्डवेयर समझ में आता है किसी और के थ्रू, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस तो वहां भी करनी होती है। बट मैंने ये देखा नॉर्मली, जैसे हम एक आप जैसे एजुकेशनल स्पेसेस करते हैं, हम सीरियस नहीं लेते, राइट? और वहीं आपको कोई दो टिप दे दे, दो शेयर्स के नाम बता दे या आपका स्क्रीनशॉट चिपका दे अपने हैंडल पे, तो वहां पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी हैज टू चेंज, ठीक है ना? आपको पैसा अपना प्रोग्रेस करना है, आपको पैसा गंवाना नहीं है, तो आपको भी ये देख। वेरी राइटली सेड अंकित जी। सो राजीव जी, प्रतीक जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम अंकित और ऑडियंसेस हैव एनी क्वेश्चंस
और otherwise I continue asking few questions. ये अंकित जी की आई अप्रिशिएट जो इन्होंने ट्रेड के बारे में भी बताया हमें, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने जो बिजनेस फ्रेंड्स एसोसिएट्स हैं उनके बारे में बताया। अंकित जी थोड़ा, चूंकि ये थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा सब्जेक्ट पे, लेकिन हमारी ऑडियंस में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अपना इतना कुछ कर रहे हैं, और आप जैसे व्यक्ति जो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, और आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात की, तो देखिए हिंदुस्तान में हम लोग सब कुछ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करने की सोच रहे हैं। तो जो हमारे लोग अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे नेटवर्किंग कर सकते हैं, अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो अपनी ट्रेडिंग, अपनी इन्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ और पैसा डिस्ट्रीब्यूशन या इस किस्म के चैनल से एसोसिएट होके पैदा करना चाहें, तो देखिए हमारा पर्पस तो ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े। तो उसके लिए कुछ बताइए कि क्या क्वालिटीज चाहिए, कौन लोग आपके साथ या औरों के साथ जुड़ के इस किस्म का काम कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ब्रीफ में अगर आप बताएं तो मेरे ख्याल काफी लोगों का इसमें भी इंटरेस्ट और फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी। अंकित जी सॉरी। श्योर राजीव जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सो मैं एक ही बात कहूंगा इसमें कि सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एटलीस्ट इन्वेस्टिंग में तो यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन। और आज के दिन अगर आप नेटवर्किंग की बात करते हो और आप अगर अपना नेटवर्क बढ़ाने की बात कर रहे हो और बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, ऑल यू नीड इज अ स्मार्टफोन and a hunger to learn and earn. You can do anything from any part of the world, not just in India but any part of the world. So अगर अब अगर अपने इस पे आते सिर्फ इन्वेस्टिंग में, आप कुछ मत करो, आप सिंपल आप अपने आपके घर पे अगर इंटरनेट के कनेक्शन है, आपके फोन पे इंटरनेट के कनेक्शन है, देर आर सो मेनी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट। ऑफ कोर्स देर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज ऑल्सो, सो दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट आप आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग का कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, कोई एक दिन में या एक साल के अंदर में इन्वेस्टमेंट का गुरु नहीं बन सकता है। बट चीज ये है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द हमारे सबके साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि हमको सब कुछ जल्दी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा एक किस्सा याद आता है। वॉरेन बफेट के एक फ्रेंड थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ, वो इनफैक्ट वॉरेन बफेट से भी बेटर थे, एंड लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर ने किया बर्कशायर हैथवे के थ्रू, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन अ हरी। तो हम लोग सबको हरी में रहते हैं कि अपने को एक साल के अंदर में इतना कमा लेना है, मल्टी बैगर ले लेना है। अगर हम लोग उस चीज के पीछे ना भागे और सिस्टम से चले, सो इंटरनेट हैज ओपनड अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड इट इज नॉट दैट वी डोंट हैव टाइम, इट इज जस्ट दैट वी लैक फोकस। हमारे पास फोकस नहीं है काम करने के लिए, अपने इसको ये करने के लिए। तो मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े प्लेयर है। आप ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अब बहुत इजी हो गया है लोगों को अप्रोच करना और लोगों से हेल्प मांगना। आई कैन सी विशाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड, सो मैंने विशाल से खाली एक बार पूछा कि प्लीज आप हेल्प करोगे हमें हमारे मिशन स्माइल में, सो ही सेड यस। Similarly, the same thing I did with so many other people, and they were all, most of the people are always ready to help. It's you who is not asking for help. That is what I feel. I hope राजीव जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर सही दिया हो। नहीं, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि खुद इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, अगर वो साथ साथ दूसरों को, जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप और वो चीजें बताई, तो एक उसमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें मार्केटिंग और नेटवर्किंग है। तो चूंकि वो समझदार है, वो दूसरों को भी गाइड करके प्रोडक्ट्स या ये सब कर सकता है, सेल कर सकता है। मैं तो ये कह रहा था कि एडिशनल एक वेन्यू खुलता है, एक जो आदमी इतनी रिसर्च कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, तो
why not he be a part of the financial services business, और उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं, ये इसीलिए मैंने बोला ये सब्जेक्ट से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इससे आपकी गाइडेंस से फायदा होता है और वो इसमें अपना कैरियर या पार्ट टाइम मनी तलाश कर सकता है, उसमें पैसा उसने नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी कर रहा है अपने लिए, लेकिन और डिस्ट्रीब्यूटरशिप या इस किस्म के एवेन्यू उसके लिए क्या खुलते हैं और उसमें पैसा अर्न करने का क्या पोटेंशियल है? राजीव जी, मैं आपको अपना खुद का ही एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे अभी आई एम वर्किंग विथ 4 interns. The youngest intern is 16 years old only. He has just joined college और वो अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करता है. He is very hard working. He is very passionate about equity, learning equity. He works on our assignment also, and we pay him also. So just imagine at the age of, and हमारी कंपनी इस बड़े फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत छोटी सी कंपनी है, तो जस्ट इमेजिन और कितनी सारी कंपनीज है जहाँ पे कितनी तरह अपॉर्चुनिटी है. मैं अभी भी आपको यही बोल रहा हूँ, जो सीख करते हैं अपॉर्चुनिटी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. इस अगर आप करोगे सीख, बहुत सारे फाइनेंशियल फर्म्स है जो लोग इंटर्न्स को रखते हैं, सिखाते हैं. At this age, after having 10 years of experience in market, I did internship at Ankur Jain's internship last year only, as recently as last year. और उसमें मैंने कितना कुछ सीखा, which is helping me in my own work also, my research also, and so many other things, right? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत तरह की है. अगर आपको रिसर्च अच्छा लगता है, आप रिसर्च पे बहुत टाइम देते हैं, यू कैन टेक अ सेबी का जस्ट रिसर्च एनालिस्ट का ये लेके, इंडिविजुअल में रिसर्च एनालिस्ट का अगर आप लेते हो तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, और आप अपने रिसर्च का अपने रिसर्च को सेल भी कर सकते हो इजीली. यू हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड पोजीशन योरसेल्फ डिफरेंटली. अगर आप सब कुछ सोचोगे कि सामने से कोई आ जाएगा और आपसी सर्विसेज लेगा, वो कोई नहीं लेगा. उसके लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी. बट मेरा ये मानना है कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. ऑल वी हैव टू लुक एट इज फाइंड आवर ओन एज कि हम लोग क्या कर सकते हैं. एंड पैसे कमाने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन इज्जत कमाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से गलत राय दे के किसी को बेवकूफ बना के या किसी को आप गलत राय दे के या गलत टिप्स दे के कर रहे हो, देन it is for sure it is not going to last for long. So if you are going to last, if you are willing to make a sustainable business, focus on honesty, focused on developing trust. Market is huge and market is still having a lot of potential in the next 10 years or 20 years. That is what I would like to say, Rajiv ji, again. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ankit ji. So brilliantly said. We have Vishal sir with us. Ankit ji, I have sent him request if he like to take the request and add value to our space. You Vishal, can request. if you have Vishal, if you have time and if you can just share something, your thoughts, that would be great. I think. Okay. No issue, sir. If he would have time, surely he will accept our humble request. So we have Satsang with us. Satsang, you can unmute and ask your question from Ankit. And guys, I have tagged the profile of Ankit. You guys can also check his handle so that the insights being shared with all of us are readily available to all of us. So guys, once again, I make a request. Those who find value in today's space, kindly associate and follow our handle so that we can get motivation and come up with more educational spaces. Satsang, over to you. Ankit bhai, I want to ask you that many industries has got the tailwind last year. But as per you, what do you think? Which industry or sector will outperform in the next run? Interesting question, Satsang ji. So first of all, I don't look at one particular industry ki yahi industry sabse zyada acha karegi. My focus is to first of all look at the businesses or industries which I understand. So cyclical businesses like steel, iron ore, oil and gas, they might have some tailwinds right now because of the structurally how we are placed in the world and in India
like inflation is going up. But since I don't understand these sectors, I generally tend to avoid betting on them, even though there are some of my investors friend who are very bullish on them. I would always stick to industries which I understand. So I see a lot of headroom for something like, say, travel and travel related space. So we have been writing about them for last 2-3 years, ever since the COVID hit. So if you look at the travel and travel related space, there are very few listed players, and even in those listed players, one or two got bankrupt. So there is a very small number of players who are having this kind of profit pool being shared with them. And if you look at what happened in the pandemic, there were so many unorganized people or unorganized players who had to shut shop because of lockdowns and so much. So that has led to more the the moat of, I would not say the moat, it is not exactly a moated business, but I would say their competitive strength has gone even better during this period. So that is a big tailwind, because in India, travel as a sector is still having a lot of headroom to go up from here. Now it's up to you whether you want to play it through uh, hotels and resort companies, or you want to play it through luggage companies. That's up to you. I won't be taking any stock specific names, but this is one sector we are very bullish on. Apart from this, we also we don't take a sectoral call. We majorly take bottom up stock calls. So we are bullish on a few focused financial players, because finance as a sector is again has a lot of tailwind in India, but finance in general is very risky. So we are in the majority of our investment in finance sector is in an area which is probably the least risky segment of the finance sector. So these two, I would say, are our top two picks, Rajiv ji. Sorry, Satsang ji. Thank you, sir. Thank you, Satsang, for asking relevant question. So, Ankit, we don't have any more question request, and it was really nice of you to come on my request and added immense value to today's space. And obviously, I and my audiences are very thankful for this kind act, and surely we will request you to come in future spaces as well, and we will try to do another dedicated space as per your availability of time. So guys, I would request you guys kindly check out the handle of Ankit, Smart Sync Services, Ravindra ji and Rajiv ji and other panelists, and you can also check mine handle. We are into organizing educational spaces. We have no vested interest but to share our knowledge, or bring learned people to share their knowledge on this platform. So we are making a earnest request, kindly connect so that you can get notification when we have spaces next time. So thank you so very much. Thank you, Ankit. Thank you, Prince. Thank you, Ravi. Thank you, Rajiv ji. And thank you, Satsang ji, for asking some really good questions. It was pleasure to be on the spaces today. Thank you. थैंक यू अंकित. सो गाइज, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा लास्ट में, बस उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे. रवि ने बहुत अच्छा ऐड किया और इवन अंकित जी ने भी समा बांधा, और रविंद्र जी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देके डिनर के लिए निकल गए. तो गाइज, बेसिकली जो हमारे साथ नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, ठीक है, सबकी प्रोफाइल सेम नहीं होती, सबका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है या इनकम, जो उनका कैश फ्लो है, वो भी सेम नहीं है. तो सबको सबसे पहले, जैसा कि अंकित भी बार बार रिपीट करते हैं, अपने आप को सबसे पहले समझना. नो योर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद आप देखिए कि आप खुद करने में कैपेबल हैं. आजकल हमारा जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर हमारे पास एक थोड़ा जो होता है ना, झील होती है कुछ चीजें लर्न करने की, समझने की, अगर वो एटीट्यूड हम कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन गो माइल्स. तो बेसिकली अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए
आप देखिए मार्केट में कभी भी ये मत समझिए कि मुझे सब आ गया है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो बुल फेज होता है उसमें लक ड्रिवन आप अगर पैसा कमा लेते हैं तो आपको लगता है कि मुझे तो सब आ गया है। तो इस ऑब्लिवियन में नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी हम्बल इन मार्केट ऑल द टाइम्स। ठीक है, अच्छी बात है, आपने पैसा कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वैसा ही टाइम रहेगा या फिर आप उसी तरीके से चीजों को कर पाएंगे। तो आपको हर फेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है कि देखिए कोई भी अगर एक चीज है उसके बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज सुनेंगे और फिर अपने विवेक से काम लेंगे तो यू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ एनी बिजनेस और मे बी एनी सेक्टर और वट एवर एसेट क्लास इट बी। तो बेसिकली आप अपने ग्राफ में ऐसे ही इम्प्रूव होते रहेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें, और जो जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ भी जुड़िए, सो दैट फ्यूचर में जो भी वो स्पेसेस या वेबिनार्स जो आप लोगों के लिए एजुकेशनल होस्ट करते हैं, अवेयरनेस फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट होता है। जैसा अंकित सर ने भी जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टच किया कि सबसे पहले अपने आप को सेव करना, जैसे टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, इमरजेंसी फंड बनाना, फिर आपका जो कैश फ्लो है, जो आपका इनकम है, उसमें से एक पोर्शन डेडिकेटेडली आपने सेविंग्स का अलग निकाल के उसके बाद अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें। और जैसा अंकित सर ने बताया कि वो लेवरेज में बिलीव इतना नहीं करते हैं, तो उन चीजों का भी हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख के वी शुड मूव द लेडर। और ऑब्वियसली जो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो कंपाउंडिंग अगर 8th वंडर है तो पेशेंस 9th वंडर है। तो हम उसको अपनी कन्विक्शन और पेशेंस के साथ क्लब करके अच्छी स्टडी करके वी कैन डू वंडर्स। तो एवरीवन कैन डू वंडर्स। So we are short on time, Akshit. We will take your request in next basis, or you can ask your query on our handles. We'll try to answer over there. जो भी आज जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, and we will meet again. Thanks once again. Thank you.